Welcome everyone. Welcome to yet another presentation of a new product from Decor Spaces. This is a unique opportunity what we have come up. It's a beautiful land parcel of a 10,000 square feet, along with a developed villa for yourself. So we are coming up with a developed farmhouses villa at a very exciting location, very near to the city. This is in the lap of nature. We are talking about Tulsi. Yes. Let me introduce myself. I am Nilesh. I am representing Decor Spaces. I am the Chief Sales Officer for this particular company. Uh, the project which we're going to unveil today is Whispers of Forest. So before we start with the presentation, let me play a small video that will give you a better understanding in terms of locality, in terms of the connectivity, in terms of what we are talking about. Please enjoy this particular video. This will give you a brief understanding. So when we talk about nature, uh, we have different kind of product available for us. This is one of the unique opportunity where you can own your piece of land, enjoy your vacation, enjoy a beautiful time with your family. Not very far a distance for people from Mumbai or Pune. It's a perfect location located between these two cities. As we have already seen, like a lot of new opportunity coming up in this particular region of Bulshi, Lonavala, Karjat. So this is one of the very unique opportunity what we have come. So before I proceed ahead with the presentation, since we are coming up with a lot of contents, lot of new product in the leisure market, I would request everyone, if you find anything beautiful in our presentation, definitely you should like our videos, subscribe to our channel so that we can bring you a more beautiful contents in this particular market. Let me present you Whispers of Forest. This particular project has got a unique name just because we're sitting in the lap of nature. Lot of rustling sound we can see in this particular piece of land parcel. So why a one or like why a person should invest in a weekend leisure homes? So everyone has got their own understanding, their own reason to own this kind of weekend homes. As we've been living into cities, chaotic cities like Pune or Mumbai, uh, I have listed on a couple of options where if you find this particular option suits your requirement in terms of personal retreat, passive income, long-term returns, home away from home, cultivate your hobbies, personal farm to home garden. So these are the things why people invest in the leisure homes category. Apart from that, it's a kind of an investment opportunity, whereas you can buy a land, construct a beautiful 2 BHK, list it over Airbnb or other hotel aggregators group that will also fetch some passive income, which will also fuel your main income source.
apart from that, that will be also a second home for you and yourself to just unveil yourself from the chaos of the city. Talking about Decor Spaces, we are next generation real estate solution company. Basically, we are experienced consultant with expertise into land. We have been dealing into land for the past couple of years. We have only been working into lands since like we have different kind of product like NA plots, villa plots, sea facing plots, agricultural farmhouses plots. These are the categories what we have been dealing in the past. Since we have been into this market and dealing with similar kind of products, we have a better understanding in terms of customer needs and their goal, what are the future aspirations they have towards this particular leisure products. Talking about the bouquet of services, we have been working into this particular market from consulting to PMC. So अगर मैं बात करूं in terms of कि क्या क्या products हमारे पास available है, so we have been dealing into multiple products. This is a particular our core team members. Mr. Karan is the CEO of Decor Spaces. Myself Nilesh, I am heading the channel sales and sales for this particular company. Mr. Pallav Desai is the CEO and head of the accounts. This is the core team members of Decor Spaces. When I was talking about the different kind of product we have been dealing into vacation homes, NA plots, land, villa, farmhouses. A new concept which has come into picture is timeshare resort, widely being accepted by the people in this particular segment, and a studio. These are the categories what we have been catering till date. We have catered 300 plus happy home buyer. They have already been dealing with us. They have got like a lot of response from our team. They have successfully got their own land or the product what we have been selling. So we have already dealt with 300 plus happy customer. In terms of volume, we have sold 15 lakh square feet of land deal the past many years. We generally operate upon an EOI model. So what is an EOI? So EOI stands for an expression of interest. Whereas in we give online presentation to the customers, we ask them for an expression of interest just to know the interest, how a person perceive about that particular project. We invite all those customers who have booked EOIs with us for the launch date. They come up with their families and their friends, have the physical visit of the land parcel or the product what we have, and then they decide either they want to purchase the product or they want to leave the opportunity. On this particular fashion, we have collected 500 plus EOI application till date. In the similar manner, we have done 25 plus project in the past 5 years. Uh, it's not a compulsion that once you have booked an EOI, you have to go for an purchase. It is just an expression of interest. Again and again, I'm repeating the same thing. If you feel like the product what we are offering or the land parcel what we are offering is not suiting to your requirement or anything which goes haywire, the EOI application is 100% refundable. No questions asked. If you feel like the product is not meeting to your requirement or not suiting to what you have expected, it will be refunded back on the very same day. We have a policy of a clean policy, what we believe. We refund the EOIs on the very same day of the purchase. Let us also understand about why people faces multiple problems in buying lands. What are the typical issues a customer faces? So there are multiple reasons, but I have just listed a four of out of them. If you buy a single land parcel for yourself, each and every infra necessity has to be fulfilled from your end. अगर मैं बात करूँ रोड इलेक्ट्रिसिटी पानी बिजली ये सारी चीजें आपको खुद के लिए अरेंज करनी होती है राइट you have to deal with the locals you have to deal with government authorities to avail all this facility so in terms of infrastructure आपको बहुत सी चीजों को खुद से अरेंज करना होगा सेकेंड रीजन जहां पर लोग पर्टिकुलरली लैंड पार्सल्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि ओनरशिप की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो काफी एम्बिगियस होती है बहुत सारे उसमें लूप होल्स होते हैं बहुत सारे उसमें एम्बिग्यूटी देखी जाती है कि एक ही लैंड पार्सल दो लोगों को बेच दिया गया हो या फिर उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो जिनमें आपस में पैसे को लेकर किसी की एम्बिग्यूटी हो जाए या फिर उस लैंड पार्सल पर किसी का लिटिगेशन तो जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन है वो कभी क्लियर नहीं होता है so that is the reason why people are refraining themselves from buying a land parcel. Third reason is lack of security and possible encroachment. Let us suppose कि आपने एक ब्यूटीफुल 1 एकड़ का लैंड पार्सल कहीं परचेज कर लिया मान लीजिए आप पुणे या मुंबई ऐसे शहरों में रहते हैं और ये जो लैंड पार्सल है किसी अलग जगह पर लोकेटेड है मान लीजिए मुंशी पे ही लोकेटेड है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी अगर आप देखें तो आप
अपने दिनचर्या में इतने बिजी हैं या अपने लाइफस्टाइल में इतने बिजी हैं कि आप उस पर्टिकुलर लैंड पार्सल के बारे में रेगुलर विजिट नहीं कर पाते हैं। और एक एक फियर ऑफ माइंड हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है कि यार मेरी जो प्रॉपर्टी है कहीं वो किसी तरीके से एंक्रोचमेंट या कोई इस पे कब्जा तो नहीं कर लेता है। तो ये एक एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या एनक्रोचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमेशा बैक ऑफ द माइंड आपके एक थ्रेट रहता है कि मेरी प्रॉपर्टी सेफ है या नहीं। प्लस मान लीजिए आपने एक सेकंड होम परचेज किया है, आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आप उस पर्टिकुलर जगह को विजिट करें, वहां पे टाइम स्पेंड करें। जब आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उसमें एक लाइफस्टाइल एमिनिटीज की जो कमी है वो आपको हमेशा करती है, राइट? आपने एक पर्टिकुलर लैंड पार्सल लिया, आपने उसमें एक घर बनाया, फिर उसमें एक एक्स्ट्रा खर्चा करना कि उसमें एमिनिटी में क्रिएट करो, तो वो एक टिपिकल इशू है जो हमारे बहुत सारे लैंड बायर्स ने पहले भी देखा हुआ है। Now, when I say that decor spaces is bringing you this particular opportunity, what we are doing, what makes us special, decor spaces क्या अलग कर रहा है कि आपको decor spaces के बारे में ये इतनी पॉजिटिव बातें हम बता रहे हैं, ये चीजें आपको क्यों परचेज करनी चाहिए या क्यों कंसिडर भी करनी चाहिए। परचेज की बात तो हम बहुत लेटर फेज में डिस्कस करेंगे, बट व्हाई यू शुड कंसिडर decor spaces as a new investment opportunity for yourself in the leisure home market. So what we are providing, what makes us special, हम आपको एक प्री कट पैकेज इजी टू अक्वायर लैंड पार्सल दे रहे हैं, जहां पर आपकी लैंड की लेवलिंग वगैरह जो है, इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, हम टेक केयर करते हैं। यू जस्ट बाय द लैंड पार्सल, इट्स इजी टू अक्वायर, और जैसे ही आपको लैंड पार्सल मिलता है आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में विस्पस ऑफ फॉरेस्ट पे तो कंस्ट्रक्शन मैं आपको करके दे रहा हूँ, ब्यूटीफुल 2 BHK। मैं आपको आने वाले स्लाइड्स पे उसके वीडियोस एंड फोटोज भी दिखाऊंगा। तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपको इसमें मिल जाता है कि आपका जो लैंड पार्सल है ऑलरेडी प्री कट है, इजी टू अक्वायर है, फुल कंप्लीट पैकेज के साथ आ रहा है, जहाँ पे आपका लैंड भी आपके नाम पर है और घर भी आपको बना बनाया मिल रहा है। हम ये इंश्योर करते हैं कि आपकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर मैं बेसिक इंफ्रा की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, इंटरनल सिक्योरिटी, आउटर बाउंड्री, ये सारी चीजें जो आप बाद में लैंड परचेस करने के बाद में करने वाले थे, वो ऑलरेडी आप हम करके प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो है विस्पस ऑफ फॉरेस्ट, हम बात कर रहे हैं 9.5 एकड़ के लैंड पार्सल की। इट्स अ कंप्लीट गेटेड कम्युनिटी, जहां पर आपको 24/7 सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस और एक सिक्योरिटी गार्ड 24/7 के बेसिस पे आपको अवेलेबल है। तो अगर आप मान लीजिए मुंबई या पुणे में रहते हैं, यू हैव अ ईज ऑफ माइंड कि आपकी प्रॉपर्टी एक सेफ हैंड में है, कहीं से भी कोई एंक्रोचमेंट या कहीं से भी कोई ट्रेस पासिंग आपके लैंड पार्सल पर नहीं हो रही है या आपके घर पर नहीं हो रही है। तो ये हम इंश्योर करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हैंड में रहे, in terms of CCTV camera surveillance or in terms of physical security guard. It will be well equipped. It's a gated community, and you'll have a ease of mind that your property is in safe hands. बात करते हैं एक मेजर कंसर्न की। इन टर्म्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन वी आर लीगली वेरीफाइड। आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी भी देख सकते हैं। कनेक्ट विथ माय टीम, आपको सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है माय टीम विल शेयर विथ यू। We have all those gut numbers, we have all those documentation available with us. Each and every land parcel is a clear title document. When we transfer the land parcel on your name, each and every landowner will get individual 7/12। हर एक लैंड ओनर के लिए इंडिविजुअल 7/12 रहेगा। प्लस हम एक नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इशू करते हैं। चलिए यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है। सो नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अस, which states that there is no litigation, no local dues or local gram panchayats due is pending with us. So when you buy a land parcel, मान लीजिए आपने जो वो लैंड पार्सल खरीदा, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी या आपके ऊपर कोई ड्यूज या फिर कोई उस ग्राम पंचायत को जो पैसे देने हो वो पेंडिंग ना हो। सो ये हमारे एंड से आपको हमेशा ये क्लियर मिलेगा। Talking about what are other things what we are providing, चलिए आपके हमने जमीन और आपकी जो फार्म हाउस था हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का जो प्रोजेक्शन है उसका मैं आपको एस्टिमेशन आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक घर या एक जमीन नहीं खरीदी है, उस पर्टिकुलर लैंड पार्सल पे किस तरीके से आप रेंटल इनकम के बेसिस पे एक पैसिव इनकम ले सकते हैं, वो आने वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। यस, दिस इज द प्रोजेक्ट विच वी आर डिस्कसिंग। इट्स अ फॉरेस्ट थीम। जो कंसेप्ट है हम लोगों ने जिसमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है, इट्स अ फॉरेस्ट लिविंग, नेचर के बीच में रहने का। जैसे हम पुराने टाइम में अपने गांव जाया करते थे,
अब जब हम बड़े शहरों में आ गए हैं, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है शायद उस पर्टिकुलर जीवन शैली को या गांव में रहने के तौर तरीकों को शायद ना एक्सपीरियंस कर पाए। तो उस तरीके का एक थीम आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लिविंग इन द नेचर, एंड दैट इज व्हाई वी हैव नेम्ड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज विस्पर्स ऑफ फॉरेस्ट। चलिए, लोकेशन के बारे में भी डिस्कशन जरूरी है। एज यू ऑल नो, मुल्सी इज वन ऑफ द वेरी फाइन लोकेशन, वेरी ट्रैंक्विल हेवन। अगर आप हम बात कर पाए पुणे से, तो बहुत से लोग वीकेंड्स पे, पर्टिकुलरली इन मॉनसून, मुल्सी काफी क्राउडेड होता है, क्योंकि इसकी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ज्यादा एक्सप्लेन अगर मैं करूं आपको मुल्शी के बारे में, देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस, बट प्रेजेंटेशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। मैं आपको एक क्रिस्प छोटे से एक्सप्लेनेशन में आपको मैं बताता हूँ कि मुल्शी जो है फेमस है मुल्शी डैम के लिए। आपको पता है कि ये मूला रिवर पर बना हुआ एक लोकेशन है, जहाँ पर टाटा पावर अपनी पावर जनरेट करती है। इस ये पर्टिकुलर लोकेशन नेचर की तरफ से अगर आप देखें तो मल्टीपल आपको ट्रैकिंग के पॉइंट्स मिल जाते हैं। तामनी घाट हो गया, कोरेगढ़ फोर्ट हो गया, धनगढ़ फोर्ट हो गया। कैंपिंग के लिए वन ऑफ द वेरी फाइन लोकेशन है। लॉट ऑफ कैंपिंग साइट्स आर देयर नियर एंड अराउंड मुल्शी लेक। नेचर वॉक्स अवेलेबल हैं। तामनी घाट अपने आप में एक ब्यूटीफुल लोकेशन है। देवकुंड फॉल, आपने अगर इसके बारे में जाना हो तो वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल ओवर देयर। इट्स अ पैराडाइज फॉर द पीपल हु आर इनटू फोटोग्राफी। बर्ड वॉचिंग के लिए भी ये लोकेशन बहुत ही फाइन है। बहुत से एक्सोटिक स्पीशीज के बर्ड इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पाए जाते हैं। So basically, what we are discussing is kind of a natural beauty what nature has provided us in the Mulshi location. Talking about the aspects, what other things we can explore nearby. So we have Andarban Forest, Mulshi Lake, Tikuna Fort, देवकुंड वाटरफॉल, कुंडलिका वैली एंड मल्टीपल रिजॉर्ट। मल्टीपल रिजॉर्ट्स यहाँ पर आपको इसलिए मिलते हैं कि नेचुरल ब्यूटी आपको अवेलेबल है इस पर्टिकुलर लोकेशन में। यू टॉक अबाउट 4 स्टार, यू टॉक अबाउट 5 स्टार properties, boutique hotels as well. All and every this kind of properties are available nearby. So let me give you a technical details about this particular project of Whispers of Forest. ये पूरा लैंड पार्सल 9 एकड़ का है। एक एक जो लैंड पार्सल है आपको 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलता है। जो विला का जो साइज है जो हम आपको बना कर दे रहे हैं वो 1,000 स्क्वायर फीट का है। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी ये 1 घंटे की दूरी पर है पुणे से। अगर मैं किलोमीटर्स की बात करूं, वाकड़ लोकेशन से अगर आप मेरे प्रोजेक्ट पर ट्रेवल करते हैं, इट्स हार्डली लाइक 39 किलोमीटर्स। विद इन एन आवर टाइम आप डेफिनेटली उसको कवर कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। तो ये लोकेशन रोड्स भी वेरी वेल कनेक्टेड है। अगर आप वाकड़ या अगर वेस्टर्न पार्ट ऑफ पुणे से ट्रेवल करते हैं तो 1 घंटे के डिस्टेंस पे आप इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आप मुंबई बेस्ड क्लाइंट है, आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आए, तो आप आएंगे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से। उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लोनावला आता है, तो एक रास्ता लोनावला की तरफ से भी आता है और दूसरा रास्ता आपको पुणे की तरफ से आता है। अगर आप चाहते हैं कि लोनावला की तरफ से आए, तो ये पर्टिकुलर रूट आपको एमबी वैली, टाइगर पॉइंट होते हुए, देयर इज अ रोड कॉल्ड मुल्शी लोनावला रोड, ये उसी रोड से होते हुए आप डायरेक्टली इस लोकेशन पर आ सकते हैं। लोनावला से हार्डली 1.5 घंटे के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। इफ यू आर समवन who's traveling from मुंबई, तो ये 2.5 से 3 घंटे के डिस्टेंस पे आप डायरेक्टली इस लोकेशन पर आ सकते हैं। Let me show you how the connectivity looks like. It's an actual Google map location what we have used. This particular area is Chandni Chowk in Pune. If you start from Chandni Chowk, it will hardly take you 1.5 hours to reach to Whispers of Forest. यही पर्टिकुलर रूट जो है आप देखिए पिरंगुट होते या पॉड रोड हम जो कहते हैं, पॉड रोड से पिरंगुट, पिरंगुट से आप आगे आते हैं गोटावड़े फाटा, गोटावड़े फाटा से फिर स्ट्रेट आप मुंशी की तरफ आते हैं। देयर इज अ वी जंक्शन। इस पर्टिकुलर लोकेशन पर एक जेपी कॉटेज या जेपी रेस्टोरेंट अवेलेबल है। वो वी जंक्शन से आप लेफ्ट की तरफ ना जाकर अगर राइट की तरफ जाते हैं, दैट पर्टिकुलर रोड इज कॉल्ड मुल्शी लोनावला रोड। आप उस रोड पे हार्डली 6 to 7 किलोमीटर आगे आते हैं। इस पर्टिकुलर लोकेशन पर विस्पर ऑफ फॉरेस्ट हमारा लोकेटेड है। अगर आप मुंबई बेस्ड कस्टमर है, आप मुंबई से होते हुए लोनावला की तरफ आते हैं, लोनावला से ये पर्टिकुलर रूट मैं आपको बता रहा था कि जो मुंबई सॉरी लोनावला मुल्शी रोड है, ये एम्बी वैली, टाइगर पॉइंट होते हुए आपको इसी रोड पे कनेक्टिविटी मिलती है विस्पर्स ऑफ फॉरेस्ट। तो ये जो लोकेशन है अगर आप देखिए तो सेंट्रली कनेक्टेड है पुणे से भी, मिडवे कनेक्टेड है लोनावला से भी, और इस वजह से काफी सारे जो मुंबई बेस्ड कस्टमर हैं
या पुणे बेस्ड कस्टमर है, वो इस लोकेशन पर दोनों तरफ से आप पहुंच सकते हैं। This is the particular layout of my project. As you can see, this particular road is the Mulshi Lonavla road. हमारा जो मेन एंट्रेंस गेट है वो रोड पर ही खुलता है। आपको इंटरनल रोड या फिर किसी गांव के रोड से आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मेरा जो मेन एंट्रेंस गेट है, जो मेरा सिक्योरिटी कैबिन है, वो इस मेन रोड पर ही ओपन होता है। आप अगर किसी भी तरफ से ट्रैवल कर रहे हो, या पुणे या लोनावला की तरफ से, आपको मेरा प्रोजेक्ट बैंग ऑन द रोड अवेलेबल है। इट्स अ ब्यूटीफुल लैंड पार्सल ऑफ 9.5 एकड़। यहाँ पर हमने क्या किया है, लो डेंसिटी लो राइज का कंसेप्ट है। हार्डली 27 प्लॉट्स हमने इस पर्टिकुलर लोकेशन पर डिवाइस किया है। इट्स अ स्लोप ऑफ अ लैंड पार्सल। तो बेसिकली जो हम इस पर घर बनाएंगे, तो 1000 स्क्वायर फीट के घर इस तरीके से डिवाइस करेंगे कि हर किसी को अपना व्यू वैली की तरफ। कुछ लैंड पार्सल से मेरे पास डैम का व्यू है, बट देन द बेसिक कंसेप्ट हियर इज फॉरेस्ट लिविंग। सो ये जो पर्टिकुलर पूरा जो 9 एकड़ का लैंड पार्सल है, इट्स लोकेटेड इन द डेंस फॉरेस्ट। हर एक प्लॉट पर आपको बहुत सारे पेड़ अवेलेबल है। वी ट्राई नॉट टू कट ऑल दोस ट्रीज एंड प्लेस आर फार्म हाउसेज इन सच अ मैनर दैट नेचर इज नॉट बीइंग हार्म्ड। ऑल्सो वी विल बी प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो हमारा जो उद्देश्य है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, कि हम बहुत सारे पेड़ इसमें और भी लगाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 27। अलग अलग प्लॉट्स के अलग अलग टेरेन्स हैं, अलग अलग टोपोग्राफी है। जैसा आप अगर चाहते हैं कि एक स्लोप वाला लैंड आप देख रहे हैं, या एक फ्लैट लैंड आप अपने लिए देख रहे हैं, कुछ लैंड से नेचुरल वाटरफॉल या फिर नेचुरल स्ट्रीम जाती है, आप अगर उस तरीके के लैंड अपने लिए परचेज करना चाहते हैं, तो वो उस तरीके के जो कॉम्बिनेशन है वो पूरे 27 प्लॉट्स में आपको अवेलेबल मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट द एमिनिटीज की क्या क्या एमिनिटीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड पार्सल आपको प्रोवाइड किया है। इट्स अ ह्यूज लैंड पार्सल। 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप मैं आपको घर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें 9,000 स्क्वायर फीट का लैंड पार्सल आपके लिए रेडीली अवेलेबल है। एमिनिटीज की अगर बात करूं, तो ओपन स्पेस जो मेरा है प्लॉट नंबर 3 के पास, एक पर्टिकुलर लैंड पार्सल है जिसको हमने एमिनिटी के लिए डेडिकेट किया है, ओपन स्पेस के लिए डेडिकेट किया है। तो उस लोकेशन पर हमारे पास टेम्पल है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो नियर बाई विलेज है, उसका नाम है नंदवली। नंदवली की जो ग्राम देवी है वनजा तुलजाई, उनका मंदिर उसी पर्टिकुलर लैंड पार्सल पे है। तो हमने बेसिकली उस देवी के मंदिर को और अच्छे तरीके से बनाने का प्रण लिया है। वो देवी का मंदिर हम वहाँ पे अच्छे से बनाएंगे। बेसिकली आपको जो टेम्पल है, वो हम उसको आपको एलिवेटेड एक प्लेटफॉर्म पे ब्यूटीफुली डिजाइन करके हम देने वाले हैं। पूरा एंटायर जो प्रोजेक्ट है आपको फॉरेस्ट थीम गार्डन के साथ में मिलता है। हर एक लैंड पार्सल के साथ में हम आपको लैंडस्केपिंग और थीमस्केपिंग करके देंगे, और जो ओपन स्पेस है वहाँ पे आपको फॉरेस्ट थीम का एक गार्डन मिलता है। चिल्ड्रंस प्ले एरिया आपके लिए अवेलेबल है। फैमिली सिट आउट का एरिया रहेगा, नेचुरल ट्रेल मिलेगा, और पेट्स प्ले जोन एरिया है। तो बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं किया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, सच दैट कि उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट आपके पॉकेट पे कहीं ज्यादा भारी ना हो जाए, या फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा आपको वर्कफोर्स लगाना ना पड़े। तो बहुत लिमिटेड हमने एमिनिटीज यहाँ प्रोवाइड किए हैं, जो सच में लोगों के इस्तेमाल में आए, सच में लोगों के लिए फ्रूटफुल। Talking about what other things getting attached to land parcel, what you're purchasing in Whispers of Forest. So what we are providing, we are giving you a private farmhouse community. 27 plots हैं। एक ही तरीके के लोग आएंगे जिनका सिमिलर माइंडसेट है फार्म हाउस के लिए, तो एक फार्म हाउस की हम कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं। हर एक प्लॉट के लिए हम आपको एक वाटर टैप का कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। वी हैव अ ब्यूटीफुल वाटर स्टोरेज इन वन ऑफ द प्लॉट्स, सो फ्रॉम देयर विल बी गिविंग यू अ वाटर टैप कनेक्शन टू ईच एंड एवरी। ये जो पानी है आपके डेली कंजम्पशन पीने के लिए, आपके डेली यूज के लिए आप कर सकते हैं। सिंस 7/12 जो है आपके नाम पर है, तो आप अपने प्लॉट पर खुद का एक बोरिंग भी कर सकते हैं। इंटरनल रोड जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंक्रीट की रोड्स हैं। हर एक प्लॉट के लिए डायरेक्ट एक्सेस आपको इंटरनल कंक्रीट रोड से मिलता है। हर एक प्लॉट के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्ड फार्म हाउसेस 1000 स्क्वायर फीट रफली अराउंड आपको हम एक बिल्ड फार्म हाउस दे रहे हैं। हर एक प्लॉट के साथ में आपको एक बॉन फायर का डेक एरिया हम प्रोवाइड करेंगे, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के शाम के समय में आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। तो वो एक एक एडेड फीचर है जो आपके हर एक प्लॉट ओनर के साथ में वो अटैच रहेगी। किचन गार्डन स्पेस आपको सिंस मैंने बताया कि 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड पार्सल है, 1000 स्क्वायर फीट में आपका घर रहेगा।
यू विल ऑल्सो गेट अनदर 9,000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड पार्सल ओपन फॉर योर सेल्फ। तो उस स्पेस में आप अपना किचन गार्डन या हाइड्रोफोनिक या इस तरीके की जो गार्डनिंग स्पेस है या वेजिटेशन के स्पेस है, आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। हमने अपना काम जो है सैंपल विला का वो प्लॉट नंबर 8 पे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही बरसात खत्म हो जाती है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त टू सेकंड वीक ऑफ अगस्त, वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो सैंपल विला है वो रेडी हो जाएगा। आ, ये कुछ एक रेंडर्ड इमेजेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल विला किस तरीके से दिखेगा। ये इसका एलिवेटेड व्यू है। हम प्लेटफॉर्म को ऑलमोस्ट 5 फीट से एलिवेट कर रहे हैं और इस तरीके का विला आपको आपके फार्म हाउस पर। ये इसका नाइट व्यू है कि नाइट में आप किस तरीके से उसको लाइटिंग के साथ में उसको कैसे आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं। दिस इज वन, जस्ट वन ऑफ द आइडिया कि किस तरीके से अपना घर का लुक एंड फील आएगा वो इस तरीके से। नाउ लेट मी शो यू सम एक्चुअल पिक्चर कि साइट अभी कैसे दिखती है। कुछ पिक्चर्स हैं जो हमने समर्स में लिए थे, फिर भी आप देखें पीक समर्स के फोटो भी आपको ग्रीनरी के साथ अवेलेबल है। बेसिक रोड इंफ्रा जो है ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल था, जो टार रोड था, लेकिन हम उस पर्टिकुलर टार रोड को नाउ वी आर डूइंग द सोलिंग और उसमें हम अपना कंक्रीट का रोड आपको पर्टिकुलर क्रिएट करके देने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है डेंस फॉरेस्ट के बीच में अवेलेबल है। आप हर एक प्लॉट पर देख सकते हैं कि मल्टीपल ट्रीज अवेलेबल है। हम जब इसमें अपना विला बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये ट्रीज को ना काटना पड़े, स्पेस का यूटिलाइजेशन हम प्रॉपर रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ हम लगा सकें, सच दैट कि आपकी जो फार्म हाउस कम्युनिटी है वो बिल्कुल हरी भरी लाइफ टाइम रहे। आप उसका नेचर का जो एंजॉयमेंट है वो आप हमेशा लाइफ टाइम ले सके, अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ये जो प्रोडक्ट है आप नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकें। टोपोग्राफी जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके की टोपोग्राफी मेरे प्रोजेक्ट पर अवेलेबल है। अगर आप फ्लैट लैंड देख रहे हैं तो फ्लैट लैंड भी अवेलेबल है, अगर जेंटल स्लोप भी आप देखना चाहते हैं जेंटल स्लोप भी अवेलेबल है। मैंने इससे कि मुल्शी में मेरा प्रोजेक्ट है तो लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्लोप वाला एरिया होगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। इट इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल लैंड पार्सल वेयर यू हैव अ जेंटल टोपोग्राफी। Few of the land parcel have slope, but that particular slope is not very steep. ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं प्लॉट नंबर 8 है, जहां हमने अपने सैंपल विला का काम ऑलरेडी स्टार्ट किया। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जब हमने इसका भूमि पूजन स्टार्ट किया। प्लॉट नंबर 8 का लैंड की लेवलिंग हमने की थी और इसका सैंपल विला का काम हमने स्टार्ट किया। Okay, let me show you some documents. These are the legal title search report जो लेटेस्ट हैं। जून 2023 के लीगल टाइटल सर्च हमने भी किए थे, जिसमें गट नंबर 8, गट नंबर 7 और गट नंबर 9, ये 3 गट नंबर पे हमारा जो कंप्लीट 9 एकड़ का लैंड पार्सल है वो अवेलेबल है। आप अगर चाहें इसको इंस्पेक्ट करना तो मैं ये लीगल टाइटल सर्च रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। हम अपने कस्टमर्स को अर्ज करते हैं कि सारे डॉक्यूमेंटेशन आप वेरीफाई कीजिए। आप भी अपने लीगल लॉयर हायर करके जो सारे डॉक्यूमेंटेशन है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। एटलीस्ट आई वांट माय कस्टमर टू बी वेरी श्योर अबाउट द लीगैलिटीज ऑफ द लैंड पार्सल, दैट देयर इज नो encumbrance. All the due diligence has been done from our end. I also urge our customer to do their due diligence from their end as well, so that there should not be any a fraction of doubt in your mind that कि कहीं आगे चल के कोई परेशानी तो नहीं आएगी इस लैंड पार्सल। ओके, किन कस्टमर्स को इस लैंड पार्सल को परचेज करना चाहिए, किन कस्टमर को इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट शो करना चाहिए, तो ये कैटेगरी है। 15 से 16 कैटेगरी हमने क्रिएट की है। अगर इन सारी कैटेगरीज में अगर आप अपने आप को पाते हैं, डेफिनेटली यू शुड गो फॉरवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, रिटायरमेंट प्लानर, अगर आप अपने फैमिली के लिए एक वीकेंड होम देख रहे हैं, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रेंटल इनकम में आप अपने आप को देख रहे हैं, आपको नेचर पसंद है, आपको फॉरेस्ट पसंद है, आप एक लेगेसी होम क्रिएट करना चाहते हैं जो आप पास ऑन करना चाहेंगे नए जनरेशन के लिए, अगर आप एक प्रोफेशनल है जो हमेशा वर्क फ्रॉम होम पे रहते हैं, या फिर आप एक ऐसा लोकेशन देख लें जहाँ से आप अपना वर्क फ्रॉम होम का जो नया कंसेप्ट है आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप नेचर एंथुसियास्ट हैं, आपके पास पेट्स हैं, आप मान लीजिए आप मुंबई या पुणे जैसे शहरों में अगर आप फ्लैट में रहते हैं, आपके पेट्स को जो जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए,
खेलने के लिए या दौड़ने के लिए, अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली ये लोकेशन आपके लिए है। तो इन सारी कैटेगरीज में अगर आप अपने आप को पाते हैं, डेफिनेटली कनेक्ट विद अस. वी विल शो यू दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी ऑफ owning a land parcel, and we can take this ahead, have a site visit, and then discuss about the financial. Okay, what are the competitive advantage in terms of buying a land parcel or buying this particular farmhouse villa in Vispas of? तो ये पूरा जो फैसिलिटी है आप सस्टेनेबली प्लान कर सकते हैं. रीजन भी आप अपना यहाँ पर सोलर पावर लगा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. जो फार्म हाउस के लिविंग एक्सपीरियंस है, जैसे मैं आपको शुरू से एक चीज पर बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने अपना बचपन गुजारा है, अभी जो आने वाली जनरेशन है उन पे फार्म हाउस का जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली आप पुणे से 1 घंटे की दूरी पर मुझे में प्रोवाइड कर सकते हैं. कम्युनिटी ओरिएंटेड हमने सारी एम्यूनिटीज को बनाई है. रीजन बीइंग कि ये लोकेशन जो लोकेटेड है मुंशी में है. मुंशी में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको आज रिसेंटली अवेलेबल हैं, जो बहुत सारी चीजों को आप उस लोकेशन पर कर रहे हैं. लेकिन हमने जो कंसेप्ट रखा है ये है फॉरेस्ट लिविंग का, जहाँ पर नेचर को ना डिस्टर्ब करते हुए एक ऐसा कम्युनिटी क्रिएट करें जहाँ पे लाइक माइंडेड नेचर लवर आए और आप साथ में अपना फार्म हाउस क्रिएट करें. जैसे कि मैं आपको एक 2 BHK का विला ऑलरेडी क्रिएट करके दे रहा हूँ. विद इन 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे आपका पूरा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है. द मोमेंट यू परचेज इट, आप उसको राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ आपकी पोजीशन से उसको रेंटल पोटेंशियल आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एयरबीएनबी, सैफरन स्टेन, रेड ब्रिक, बहुत सारे ऐसे होटल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं जो उस पर्टिकुलर मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं. आप उनसे टाई अप करके अपने प्रोडक्ट को डेफिनेटली एनकैश कर सकते हैं, एक रेंटल इनकम उसमें से निकाल सकते हैं. चलिए मैं आपको अब प्रमोटर के बारे में बताता हूँ. जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो है मिस्टर नरेश बर्डे का. ही ओन्स अ कंपनी कॉल्ड एक्सलेंट शेल्टर. उनकी लेगेसी रही है इस पर्टिकुलर मार्केट में, जहां पर उन्होंने इको फ्रेंडली बंगलोज, फार्म हाउसेस, इनका जो पूरा करियर रहा है वो इसी स्पेस में रहा है. ही इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग लैंड डेवलपमेंट कंपनी है जो किसी 5 स्टार रेटेड है. इनका एक एनजीओ भी चलता है, एक्सलेंस ध्यास फाउंडेशन, जिसकी भी प्रेसिडेंट है. ही इज अ पीएचडी इन एग्रीकल्चर. काफी सारे अवार्ड्स इनको इंटरनेशनली और नेशनली भी अवार्डेड हुए हैं. सो ही इज द प्रमोटर ऑफ द लैंड पार्सल, वेरी वेरी वेल नोन, वेरी वेल कनेक्टेड, well educated, and he has a liking towards the nature, where he has already dedicated his complete life towards agriculture and promoting this kind of product in the leisure. ये कुछ अवार्ड्स एंड एक्कोलेट्स हैं जो डॉक्टर नरेश बर्डे को अवार्ड हुए हैं. इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है ईमानदारी. इसका जो लॉन्च इवेंट है वो हुआ था सैन फ्रांसिस्को में. देन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसको पब्लिश किया था लॉस एंजलिस में, सॉरी. सो ये जो डेवलपर हैं ये उनका बैकग्राउंड है. काफी टाइम से वो इसी स्पेस में काम कर रहे हैं. इस तरीके के प्रोडक्ट्स वो मार्केट में लेकर आते रहते हैं अलग अलग लोकेशन में. सोलर, मुंबई, इसी सारे लोकेशंस पे इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. चलिए, टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, लाइक आई हैव बीन बूस्टिंग अबाउट माय प्रोजेक्ट. बहुत सारी फैसिलिटीज मैंने आपको बताई, मैंने बहुत तारीफ भी की अपने प्रोजेक्ट के बारे में. एवरीवन ऑफ यू वुड हैव बीन वेटिंग फॉर प्राइसिंग, सो लेट्स डू दैट ऑनर. मैं एक प्राइस आपको बताता हूँ उस पर्टिकुलर मार्केट का. आप अगर मुल्शी के एरिया में एक 10,000 स्क्वायर फीट का फार्म हाउस बना हुआ एक लैंड पार्सल पर देखते हैं तो रफली अराउंड 90 लाख रुपीज का बजट जाता है, एक्सक्लूडिंग योर इंफ्रा, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस. ये सारी चीजें 90 lakhs पर एडिशनल होती हैं. ये करंट मार्केट सिनेरियो है. अलग अलग डेवलपर्स के लैंड पार्सल वहां पर अवेलेबल है. डेवलप्ड फार्म हाउसेस का जो प्राइसिंग है रफली अराउंड 90 lakhs प्लस टैक्सेस के प्राइस रेंज पर जाता है. अब इस पर्टिकुलर एरिया में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इस पर्टिकुलर मुल्शी का जो मार्केट है वो इतना अप्रिशिएशन ले रहा है इन्वेस्टर से, सेकंड होम बायर से, और क्यों लोग इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आना चाहते हैं. कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ है वो इस लोकेशन पर प्लान्ड है.
आने वाले समय में आप सारे जो डेवलपमेंट है वो देख पाएंगे। जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, पुणे से जो दिल्ली का जो हाईवे बन रहा है, दिल्ली इज वन ऑफ द पोर्ट। आपने देखा होगा चांदनी चौक पर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ रोड एक्सपेंशन। सो पर्टिकुलरली वो जो रोड है वो उसी लोकेशन से पास हो रही है, जो तामनी घाट वाला रूट है। सो ये एक ट्रांस कॉरिडोर है जो बेसिकली पुणे को दिघी पोर्ट से कनेक्ट करता है। एक और वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट विच हैज कम इनटू पिक्चर इज द मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। आपने देखा होगा कि वीकेंड्स पे लोनावला के घाट पर बहुत जाम लगता है। इस वजह से लोग 2 से 3 घंटे उसी जाम पर फंसे रहते हैं। रीजन बीइंग कि वो घाट वाला एरिया एक बॉटल नेक है, हर कोई वहीं से ट्रेवल करना चाहता है। सो अभी जो मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट है, ये लॉन्गेस्ट टनल बन रहा है महाराष्ट्र में, 10.67 किलोमीटर्स का। बेसिकली वो जो घाट वाला सेक्शन है उसको बाईपास करके वो वापस आपको मेन हाईवे पर ही वो रोड कनेक्ट हो जाती है। जो घाट का एरिया है बेसिकली वो अवॉइड हो जाता है, और आपको ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटे का समय से 1.5 घंटे का समय आपका सेव हो जाता है, और आप लोनावला को बाईपास करते हुए आगे आप अपना ट्रेवल कंसिडर कर सकते हैं। ये इसका जो कंप्लीशन है प्रोजेक्ट का, वी आर एक्सपेक्टिंग इट बाय दिस ईयर दिसंबर, बट होपफुली ये दिस ईयर दिसंबर तक आपको डिलीवर हो जाता है। डायरेक्टली आप सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट के पास कनेक्ट हो जाते हैं बाईपासिंग द कंप्लीट लोनावला घाट एरिया। आपने पुणे आउटर रिंग रोड के बारे में भी काफी न्यूज पढ़ी होगी, काफी सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। तो ये जो आउटर रिंग रोड है ये बेसिकली पास हो रहा है पिरंगुट एरिया से। मान लीजिए आप मुंबई बेस्ड कस्टमर हैं जिसको पुणे की ट्रैफिक में आकर नहीं फंसना है, आप उड़से या तलेगांव टोल प्लाजा तक आइए, वहां से आप अपना ये जो पर्टिकुलर नया आउटर रिंग रोड रहेगा वहां से कनेक्ट करिए, डायरेक्टली पिरंगुट आकर पिरंगुट से मेन जहां से आपकी कनेक्टिविटी आपको ये रोड मिलती है, पुणे दिघी हाईवे जो बन रहा है, वहां से 28 किलोमीटर्स पर हम लोकेटेड है। सो बेसिकली जो कस्टमर्स हैं पुणे की ट्रैफिक को अवॉइड करके आउटर रिंग रोड से ही कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको मुल्शी आने। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर कल को जब जैसे ही रेडी होता है, बेसिकली बहुत से बेनिफिशियल होंगे, वो पुणे के भी कस्टमर्स होंगे जिनको जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो आपको नवी मुंबई वाली ज्यादा पास है। ये सारे डेवलपमेंट की वजह से इस एरिया का अप्रिसिएशन is bound to happen. Lot of people who have invested in Lonavala previously are looking for a new area to invest, and what can be better than Mulshi? So Mulshi सिमिलर टाइप ऑफ वेदर को एंजॉय करता है, सिमिलर टाइप की टोपोग्राफी है लोनावला जैसी, और एक व्हाट टू से लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ चीपर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट। अभी जब डेवलपमेंट नहीं हुआ है आपको रियल एस्टेट काफी सस्ते में इस लोकेशन पर मिलती है। जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें आती हैं, आपको अप्रिशिएशन आपकी प्रॉपर्टी से, आपके अप्रिशिएशन आपके लैंड से डिराइव होना स्टार्ट हो जाता है। टॉकिंग अबाउट द राइजिंग डिमांड ऑफ प्लॉटिंग डेवलपमेंट, तो आपने पुणे शहर या मुंबई शहर में भी बहुत सारे ब्रांडेड डेवलपर्स के प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे। पोस्ट कोविड हमने भी बहुत स्पाइक देखा है इस पर्टिकुलर मार्केट में, जहां पर लैंड की बहुत डिमांड रही है, लोग अपने क्योटिक लाइफ से थोड़ा बाहर निकलना चाह रहे थे। तो ये इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं अब मार्केट में काफी प्रिवलेंट है। बड़े डेवलपर्स को एक लिक्विडिटी का ऑप्शन मिल जाता है कि उनके पास जो बड़े लैंड बैंक बचे थे उनको वो लिक्विडेट करके अपने कैपिटल रेज कर सके। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स रिसेंटली पोस्ट 2019 या पोस्ट कोरोना, अगर आप सॉरी पोस्ट 2020 या फिर कोरोना के बाद अगर आप देखें, तो काफी सारे प्लॉटिंग डेवलपमेंट्स इस पर्टिकुलर मार्केट में आपको देखने। ओके, लेट मी टॉक अबाउट द रेंटल पोटेंशियल। रेंटल इनकम का जो पोटेंशियल है उसकी डिमांड एनालिसिस कैसी है, तो हमने इसका एक प्रॉपर स्टडी किया है। तो देयर अ वेबसाइट कॉल्ड एयर डीएनए। इस पर्टिकुलर वेबसाइट से बहुत सारे जो होटल एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म्स हैं अपने प्राइसिंग को उस में मॉनिटर करते हैं। हमने एक छोटा सा स्टडी किया है जहां पर अगर आप देखें तो ये लोनावला का जो मार्केट है, हमने एक जस्ट अगर आप पर्टिकुलर मंथ का देखें तो जुलाई से सितंबर का हमने स्टडी किया था। 23% की ऑक्यूपेंसी रेट इस पर्टिकुलर सीजन में आपको बेयर मिनिमम पे मिलती है, राइट। अगर आप डेली एवरेज रेट देखते हैं एक विला का 2 BHK का, तो बेसिकली 14,500 से 20,000 रुपए जाता है। मान लीजिए एवरेज हमने लिया 14,500 रुपए का। तो जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो रफली अराउंड 1 लाख रुपए आपको जाता है इन इन द पीरियड ऑफ जुलाई टू फेब्रुवरी। तो ये एक रीसेंट ट्रेंड है जो हमने रिसेंटली ये देखा है कि रेंटल डिमांड इस पर्टिकुलर मॉनसून सीजन में उस पर्टिकुलर मार्केट में आपको इस तरीके से फ्लक्चुएट होती है।
टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वन ऑफ द वेरी फेमस जो रिजॉर्ट्स हैं, जो जैसे आत्मंथन की अगर मैं बात करूँ तो एक वेलनेस रिट्रीट है वहां पर। बहुत दूर दूर से लोग इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आते हैं। 4 स्टार, या फिर मैं बुटीक रिजॉर्ट्स की बात करूँ तो मल्हार माची, जल सुस्ती, लेक व्यू रेसिडेंसी, सैफरन स्टे, एनकोर बुटीक, यू नेम देम एंड यू हैव देम इन मुल्शी। मुल्शी का लोकेशन ही इतना फेमस है कि ये सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो उस लोकेशन पर अवेलेबल। मल्हार माची इज हार्डली लाइक 6 किलोमीटर फ्रॉम माई मेन एंट्रेंस गेट। इतने पास हम उस लोकेशन पर अवेलेबल है। आप अगर मल्हार माची या इस तरीके के आप बुटीक रिजॉर्ट्स का अगर आप पर नाइट बेसिस अगर आप देखें तो 15,000 रुपीज से 30,000 रुपए के बीच में आपको अलग अलग कैटेगरी के मिल जाते हैं। सो वाई यू शुड इन्वेस्ट इन मुल्शी इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। आपने अगर एक 2 BHK विला बनाया है अपने फार्म हाउस पे, डेफिनेटली आप एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 8,000 रुपए से 15,000 रुपए की। मान लीजिए जो कस्टमर जिनका प्राइस बैंड 15,000 से 30,000 रुपए का नहीं है, वो एक छोटा ऑप्शन देखना चाहेंगे, कुछ चीपर ऑप्शन देखना चाहेंगे अपने फैमिली स्टे के लिए। हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक 2 BHK का ऑप्शन है, डेफिनेटली वो उस रेंज पर आप अगर चाहें तो उसको कैप कर सकते हैं 10,000 से 15,000 के बीच में। And the nature what this resorts enjoy, you already enjoy in our project called Whispers of Forest. एस्टिमेटेड एक रेंटल इनकम का बेसिस मैं आपको यहाँ पर एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने सिर्फ जो ऑक्यूपेंसी रेट लिया है वो 15% का ऑक्यूपेंसी रेट लिया है थ्रू आउट द ईयर, जो कि बहुत ही मिनिमम है। एवरेज एक्सपेक्टेंसी रेट अगर आप देखें और ऑक्यूपेंसी रेट इस पर्टिकुलर लोकेशन के फुटफॉल के हिसाब से अगर आप देखें 45% से 60% के बीच में वो रेंज करता है। आप उसमें जो एक्चुअल जो नेट फ्लो है, आपका जो कैश फ्लो होता है वो रफली अराउंड 35 to 40,000 रुपीज पर मंथ हो जाता है, और नेट कैश फ्लो जो आपका ईयरली जाता है वो रफली अराउंड 4.5 से 6 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में वो वेरी करता है। तो इस तरीके का जो एक रेंटल एनालिसिस है वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। फॉर द फर्दर डिटेल्स आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करिए। ये सारा जो रेंटल एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। यू कैन प्ले अराउंड ऑल दिस ऑन एक्शन, एंड देन यू कैन जस्ट डिराइव कि आप किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, किस तरीके का आपको रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आपने एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट लिया है पुणे में रफली अराउंड 70 लाख का, जिसमें आप अगर नॉन फर्निश उसको देते हैं तो 20,000 रुपए मैक्सिमम आपको रेंटल मिलता है। ऑन एन ईयरली बेसिस आपका जो रेंटल इनकम है, अगर उस पर आप ROI की बात करें तो 2 से 3% का ROI मिलता है। सिमिलरली अगर आपने कमर्शियल किया है तो आपने 4 से 5% का ROI आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर मॉडल पे जहां पर आपने एक लैंड परचेस किया, जहां पर आपने 2 BHK बनाया है, यहाँ पर अगर आप देखें आपका इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है जितना आपको रिटर्न मिल रहा है। सो 8 से 9% जो है वो मिनिमम वेयर आप इस पर्टिकुलर मॉडल पे अपना रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं। सो मार्केट प्राइस जो है 89.9 लाख रुपीज प्लस इंफ्रा, प्लस स्टैम्प ड्यूटी, प्लस रजिस्ट्रेशन, प्लस कॉमन एम्यूनिटी चार्ज, ये सारी चीजें एक्सक्लूडेड के साथ में ये और ऊपर चला जाता है। इसलिए हम इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे नहीं ऑफर कर रहे हैं। हमारा एक एक्सक्लूसिव लॉन्च प्राइस का जो ऑफर है वो एक अलग प्राइस सेगमेंट में है। हमने काफी टफ कंपटीशन क्रिएट किया है इस पर्टिकुलर मार्केट में। तो हमारा प्राइस है 79.9 लाख रुपीज प्लस इंफ्रा, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड कैंप चार्जेस। अब बुकिंग के प्रोसेस का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ वी प्रोसीड अहेड विद द बुकिंग। टॉकिंग अबाउट, वी हैव 5 स्टेप बुकिंग प्रोसीजर। पहला स्टेप है वर्चुअल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, जहां पर मेरी टीम आपको वर्चुअली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करती है, जैसे मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। पहला स्टेप ऑलरेडी आप अगर आपने अगर यहाँ तक हमारा वीडियो ऑलरेडी देख लिया है तो आपने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लिया है हमारे बुकिंग प्रोसीजर का। सेकेंड स्टेप है कि हम EOI, सो EOI जो है हम दो तरीके के आपको ऑफर कर रहे हैं। पहला EOI है 51,000 रुपीज का, सेकंड EOI है 1 लाख रुपीज का। Based upon your purview, 51,000 is a normal token, 1 lakh rupees is a priority token. ये सिर्फ टोकन अमाउंट है। अगर आप कल को मेरा साइट विजिट करते हैं और किसी कारणवश लगता है कि नहीं नीलेश मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं पसंद आ रहा है या मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, 100% आपका जो पैसा है 51,000 रुपीज या 1 लाख रुपीज 100% आपको हम रिफंड कर देते हैं, जिसमें आपका एक भी रुपए का डिडक्शन हम नहीं करते। आप जो अभी टोकन करते हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, आप वो अवेल करते हैं। स्पेशल इनविटेशन हम आपको आपकी फैमिली को और आपको
भेजते हैं, आप आके अपने प्लॉट सेलेक्ट करिए, अपना प्रोजेक्ट देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा है, आपने जो टोकन दिया है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, इज 100%। इन टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है लीगली हम कंप्लाइड है, हम रेडी हैं। द मोमेंट यू पे अस द 100% ऑफ द लैंड वैल्यू, विद इन 15 डेज हम आपका एग्रीमेंट के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डिकॉर स्पेसेस का ये पहला प्रोजेक्ट है, हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इसी मॉडल पे किए हैं। रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया था दापोली में। दापोली इज अ ब्यूटीफुल कोस्टल टाउन इन रत्नागिरी। उसका एक छोटा सा मैं आपको आफ्टर मूवी दिखाना चाहूंगा, सच दैट यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके की कंपनी से आप डील कर रहे हैं, किस तरीके का मॉडल हम ऑपरेट करते हैं, और क्या हमारे जो प्रीवियस कस्टमर्स हैं उनका रिव्यू रहा है हमारे प्रोजेक्ट। Please enjoy this video. This particular video will give you a better understanding कि किस तरीके का प्रोसीजर हम follow। So you have bought a token, right, in the month of October or November something, or Yes, December. I think yeah, late November. Yeah. Yeah. And were there any apprehensions because you haven't seen the site? Today you have seen the site, right? So before buying that token, were there any doubts that I think I spoke to Pallav and he was very assuring, like in explaining the whole thing. And he was like, "आप पहले आओ, then we'll see." ठीक है, आपको सब दिखाएंगे and then only we will think about it. That was very assuring. That okay, we are here, we have seen the things, we have met the founders, I mean, who has invested the whole money. So it's very assuring, right? I mean, there is something very concrete. Because otherwise, investing into plot in a state which you don't belong to, in an area you have no idea about, is a very risky call, I would say, for anyone. But after looking at all this was very reassuring. ऍक्च्युली कसं आहे ना, म्हणजे आम्ही वेबिनार्स वगैरे असे बरेच अटेंड केलेले आहेत काही, बट जेव्हा आम्ही ऍक्च्युअल बघायला गेलेलो, सो मिसमॅच म्हणजे जे आहे त्याच्यापेक्षा वेगळं काहीतरी आम्हाला बघायला मिळालं, लाईक नॉट अप टू द पॉइंट असायचं. सो ह्यावेळी आम्ही टोकन तर बुक केलं, बट एक मनामध्ये होतंच की माहित नाही, जसं ह्यांनी बोललंय, दाखवलंय, सांगितलंय जे काही गोष्टी त्या ऍक्च्युअल आहे की नाही, सो ते माहित नव्हतं. तर तो गोंधळ ऑब्व्हियसली सगळ्यांनाच असतो, आणि मग त्यामुळे आम्ही जेव्हा व्हिजिट केलं सो कळालं की नाही आहेत, म्हणजे आपण बुक करू शकतो इझिली. so was there any apprehensions before buying that token, that you even haven't visited the site at that time when you bought the token? So was there any apprehensions, should you go forward or not, or something like that? No, we were not having any apprehension before, and we had already made up our mind of the lots which we would actually have the choice. I just have to shift that choice because after coming to the actual site visit, the perception of what we had thought, and that was very different, and we actually bought a better one what the choice was before. Put forth my intentions of cancelling. The process was really smooth. There were no questions absolutely asked, and I was given the check right away within 5 minutes. So I think this was the best sort of experience that I have had. So we at Decor Spaces believe into transparency. Until unless my clients are satisfied with all the queries being sorted, उनके सारी क्वेरीज जब तक हम उनके सारे आंसर्स नहीं कर देते हैं, हम उनको आगे प्रोसीजर के लिए फॉरवर्ड ही नहीं करते हैं, या फिर हम उनकी बुकिंग्स के लिए उनको प्रेशराइज ही नहीं करते। वी वांट कि हमारे जो कस्टमर है लाइक माइंडेड हो, और उनके जो प्रोडक्ट के लिए जो भी कंसर्न्स हो वो सारे क्वेरीज क्लियर हो, देन दे शुड प्रोसीड अहेड विद द इन्वेस्टमेंट। So why should you do an EOI? इसके मल्टीपल रीजंस है, लेकिन मैंने 5 रीजंस निकाले हैं आपके लिए। पहला है कि आप साइट विजिट आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप आइए, टोकन करिए, आप अपना एक टाइम स्लॉट हमें हमारी टीम को बताइए, डेफिनेटली उस टाइम पर हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल रहेगी साइट पर। आप आइए, जो भी क्वेश्चंस हैं हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं।
अगर आपने हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देखा है, डेफिनेटली हमारे नंबर्स अवेलेबल होंगे एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। हमारी टीम से आप कनेक्ट करिए, साइट विजिट शेड्यूल करिए, आइए हमारे साइट पर, आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेरीज हैं, हमारी टीम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। आपने अगर ईयूआई किया है, उस बेसिस पे जो अर्ली बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ एक्सक्लूसिव लॉन्च ऑफर या फिर जो भी डिस्काउंट एप्लीकेबल होंगे उस टाइम फ्रेम पर, वो डिस्काउंट आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, रीजन बिंग क्योंकि आपने ईयूआई किया है। अभी के बेसिस पे अगर आप चाहते हैं, 27 प्लॉट्स हैं, आप उनमें से कोई भी प्लॉट अपने चॉइस का सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ईओआई एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे हम उसको एलोकेट करते हैं। हम आपको एक ऑप्शन ये भी देते हैं कि आसपास के जो भी प्रोजेक्ट है आप उनसे कंपेयर कीजिए, सारा ड्यू डिलिजेंस करिए, अपना टाइम लीजिए और इंटरेक्ट करिए मेरी टीम के साथ, डेवलपर टीम के साथ, एंड देन यू कम अप फॉर द फाइनल कंक्लूजन कि आपको ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजों के लिए आपको ईओआई करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे विजिट करेंगे, बहुत सारे लोग ईओआई करेंगे, तो बेस्ड अपॉन द ईओआई नंबर आपको जो ये प्रोसेस जो सिलेक्शन है या प्लॉट का जो सिलेक्शन है वो उसी नंबर के बेसिस पे आपको एलोकेट करना स्टार्ट करें। सो जो बेनिफिट की बात हम इतनी देर से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतनी देर से हम कर रहे थे, तो एक्सक्लूसिव ऑफर है सिर्फ ईओआई एप्लीकेशन होल्डर्स के लिए। मान लीजिए आपने 51,000 रुपए या 1 लाख रुपए का टोकन किया, तो क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है? ये बेनिफिट आपको मिलता है, हम आपको 79.9 लाख जो हमारा लॉन्च प्राइस है, हम उस प्राइस पे आपको ऑफर नहीं करेंगे। आपका जो प्राइस होगा वो होगा 74.9 लाख रुपीस। इसके साथ में एक और ऑफर आपको मैं देना चाहता हूँ। इसमें है कि आपको जो इंफ्रा चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये सारी जो चीजें थी वो इसमें इंक्लूडेड ऑलरेडी हो चुकी है। आपको जो टैक्सेस का पार्ट है वो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पर ऑलरेडी आपके फिक्स हो गए हैं। तो ऑल इंक्लूसिव प्राइस फॉर अ 10,000 स्क्वायर फीट प्लॉट फॉर अ विला इज 74,90,000। मगर ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है वो अवेलेबल है सिर्फ एप्लीकेशन होल्डर्स के लिए। मान लीजिए आपने ईओआई नहीं किया, बेसिकली मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ईओआई बेसिस पर ही सेल हो जाता है, मान लीजिए फिर भी कुछ प्लॉट्स बच गए, तो आपको ये प्राइस अवेलेबल नहीं होगी, आपको अवेलेबल होगी 79.9 लाख रुपीज प्लस टैक्सेस वाला जो हमने लॉन्च प्राइस निकाला है। अगर आपने ईओआई किया है तो आपको जो प्राइस अवेलेबल होगा वो 74.9 लाख रुपीज इंक्लूडिंग टैक्सेस। ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस 74.9 लाख सिर्फ ईओआई एप्लीकेशन होल्डर्स के लिए ही। ओके, लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द पेमेंट शेड्यूल, कि पेमेंट शेड्यूल कैसा रहेगा। तो हमने इसको अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया है। मान लीजिए आपने ईओआई का एप्लीकेशन आज किया है, आपने 51,000 रुपए का नॉर्मल टोकन या 1 लाख रुपए का टोकन किया है। हमारा जो लॉन्च इवेंट है हम प्लान कर रहे हैं कि अगस्त तक आपको हमारा जब सैंपल विला बन जाता है, उसके बाद जैसे ही हमारा सैंपल विला क्रिएट हो जाता है हम आपको इसका प्रोजेक्ट का लॉन्च कर देते हैं। बट उसके पहले आप यूआई एप्लीकेशन अपना सिक्योर कीजिए। बुकिंग के कंफर्मेशन के दिन आपको 10% देना है विद इन 15 डेज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा 25% का विद इन 45 डेज देना है बुकिंग के। सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगेन 25% ऑफ द टोटल पैकेज आपको देना है 90 डेज के दिन में। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो 25% है टोटल पैकेज का वो आपको 135 डेज में देना है। और जो सेल डीड होगा आपका रजिस्ट्रेशन जब होगा, जब आपको पूरा 100% पैसा हमें मिल जाता है, जो बैलेंस 15% हमें मिल जाता है विद इन 180 डेज, यानी आपको 6 महीने का टाइम आपको इस तरीके से हमने डिवाइस किया है कि आप अपने फंड्स को क्रिएट करके आप ये मतलब सिंगल स्लॉट पेमेंट की जगह आपको अलग अलग टाइम फ्रेम मिलता है इसके पेमेंट। तो ये 180 डेज का पेमेंट शेड्यूल है। ये आप मेरी टीम से कलेक्ट कर सकते हैं जब आप हमारे टीम से कनेक्ट करेंगे साइट विजिट के लिए या पेमेंट शेड्यूल के लिए। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। ओके, अभी जो कस्टमर चाहे यूट्यूब में ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं, ये स्कैनर अवेलेबल है। ये स्कैनर जो है आपके ईओआई पेमेंट के लिए है, आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है नीलेश, मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, इट्स 8827581935। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं इस पूरे प्रेजेंटेशन में या इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फोन नंबर पर। हमारा जो कंपनी का जो नाम है वो है डेकोर स्पेसेस, ये उसके बैंक डिटेल्स है। जो भी आप ईओआई का पेमेंट करेंगे वो इसी में आएंगे। हमारा जो ऑफिस है वो बानेर पे लोकेटेड है।
द मोमेंट यू कॉन्टेक्ट अस फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग, हम आपको अपना ऑफिस का एड्रेस भी प्रोवाइड करते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आइए, विल हैव अ डिस्कशन एंड देन विल फिक्स कि किस दिन आप हमारे प्रोजेक्ट पर जा सकते हैं विजिट के लिए। और साइट विजिट के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा प्लॉट पसंद है, कौन सा प्लॉट आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, क्या साइज है प्लॉट की, क्या प्राइसिंग है प्लॉट की, हम उसको आपको साइट विजिट पे ही एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, इट्स 8827581935। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, मेरी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाता है, आप वहां से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो प्रोजेक्ट को लेकर, प्रोसीजर्स को लेकर या कंपनी को लेकर, आप एनी टाइम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप यहाँ तक पूरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रोडक्ट अपने लिए देख रहे हैं। ये एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है जहां पर एक क्लियर टाइटल लैंड पार्सल आपको 10,000 स्क्वायर फीट का एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर मिल रहा है, जहां पर अपना एक फार्म हाउस रेडी टू बिल्ड है, जहां पर आपको कोई भी टेंशन नहीं है कि आप किस तरीके के वेंडर लाएंगे, किस तरीके का रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, सारी चीजें आपको ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बट डेफिनेटली एक वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे सिर्फ 27 या 27 आपको फार्म हाउसेस मिल रहे हैं। एक एक्सक्लूसिव गेटेड कम्युनिटी है 9 एकड़ की। Get connected with our team. I am Nilesh signing off from this presentation. We are Decor Spaces and we bring you a lot of leisure products in this particular field. Thank you so much for watching this video till this particular point. Get connected to my team, visit our website or come to our office. We can have a fruitful discussion. Thank you so much.